Hi, hello everyone. Welcome to your physics concept class. Today we are going to discuss the session 4 of the objective questions with the topic Gauss theorem. The motive of such type of sessions of objective questions is very clear, that the students of 12th class can be solved easily the objective questions for the board examinations and as well as for the competitive examinations. And the one motive is that you can understand the concept behind the objective questions properly. Okay, so let me start the class, and this is the fourth session of objective questions with the topic Gauss theorem. So let me start the first question of the day. The first question of the day is the question 1. Okay, if a cylinder of radius r and length L is placed in a uniform electric field E parallel to the cylinder axis, the total flux of the surface of the cylinder is given by. There are the four options in the question. The first option of question is 2 pi r square E. The second option of the question is pi r square upon E. Third option of the question pi r square upon pi r divided by E, and the fourth option is 0. So which should be the right answer? Let me explain the question. According to question, this is an electric field and a Gaussian cylinder is placed in this uniform electric field E such as the direction of electric field V along the axis of cylinder. तो ये सिलेंडर का एक्सेस है, ये इसका डायरेक्शन है. तो वी ऑलरेडी नो दैट द सिलेंडर हैव द थ्री एरियाज, टू बेस एरियाज and one curved surface area. So the area vector of this base is ds, area vector of this first base is ds, and for the curved surface area this is also ds. Okay, now we can see the direction of electric field is along this. So this is the direction of electric field for this base area. The angle between the area vector and electric field for the first base, that is f1, is 180 degree, and for the second, the direction of electric field and area vector is same. Here angle is 0 degree, and for the curved surface this angle is 90 degree. The flux associated with this cylinder may be equals to E dot ds होता है, तो E ds angle between the first surface f1, यहाँ पे एंगल कितना होगा 180 डिग्री, प्लस फॉर द सेकेंड सरफेस E ds cos 0 degree, and for the third this is S2, and the curved surface can be represented by C. So for the curved surface it is E ds cos 90. So we already know that cos 90 is minus 1, so it is E dot ds. We know that the base areas are equal, so integration of ds over S1 is same as over S2, so we can write only ds here. This is E ds, and third one is 0. So this value is negative and this value is positive and equal. That's why the flux associated with the cylinder is 0. So the fourth option be correct. Okay. Now our second question of the day is, an electric charge Q is placed at the center of a cube of side A. The electric flux on its face will be. There are four options in the question, and the first option is Q upon 6 epsilon naught. Second option is Q upon 4 pi A square. Second option is Q upon epsilon naught A square. Epsilon naught A square, and the third option C is Q upon 4 pi epsilon naught A square, and the fourth option D is Q upon epsilon naught.
So which one is the correct option? So as we can see, this is a cube, and according to question, a charge Q is placed at its center. So according to Gauss theorem, the flux associated with this whole cube is Q upon epsilon naught times, और we already know that a cube has 6 faces. कितने फेस होंगे इसमें? 6. 1, 2, टॉप और बॉटम के 2, आमने सामने के 2 और आगे पीछे के 2, 6 होंगे. तो ड्यू टू द स्पेरिकल सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज से सारे ही डायरेक्शन में निकलती है. तो यहाँ 6 फेसेस हर फेस में इक्वली जाएंगी. और फ्लक्स होता क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द सरफेस. तो टोटल का Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और एक फेस को लेंगे तो 6 फेस है, 1/6 टाइम हो जाएगा. तो द फाई फेस, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, फाई एफ लिखने का मीनिंग यहाँ पे है द फ्लक्स एसोसिएटेड विद वन फेस इफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर होल डिवाइडेड बाई 6 फेस है, तो दिस इज Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट. तो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन A. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. You can note down by pausing the screen if you want. Now our next question, that is the question 3. Total electric flux coming out of a unit positive charge put in air is, question number 3. Options are, the first option is epsilon naught, second option is epsilon naught inverse, third option is 4p epsilon naught inverse, and fourth option D is 4p epsilon naught. So you know that there is no meaning of p here, so these two will be wrong answer. In these two, one of them is correct, epsilon naught or epsilon naught inverse. So we know that the flux is given by the net charge upon epsilon naught. The charge is given in unit, means 1 coulomb, or so the phi E is equals to 1 upon epsilon naught. It can be written as epsilon naught inverse. So right option should be this. The option B is correct for this question. Okay. Now our next question, that is the question 4. A charge 10 microcoulomb is placed at the center of a hemisphere of radius r equals to 10 centimeter. The total electric flux through the hemisphere is, again we have the 4 options in the question, 20 into 10 to the power 5. The second option is 10 into 10 to the power 5, and C, the third option, C is 6 into 10 to the power 5, and D, the fourth option is 2 into 10 to the power 5. So which will be correct? Let me check. Okay. हेमी स्पेयर, अगर हम पूरा स्पेयर बनाते हैं तो वो ये होगा, और हेमी स्पेयर ये होगा. चार्ज कह रहे हैं इसके सेंटर पे रख दिया है, क्यों? जो भी चार्ज है 10 माइक्रोकोलम का, Q इज गिवन 10 माइक्रोकोलम, रेडियस इज गिवन 10 सेंटीमीटर. अब यहाँ से फ्लक्स फाइंड आउट करना है. तो हमें पता है कि अगर ये स्पेयर के सेंटर पे चार्ज होता तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारी डायरेक्शन में मूव करती हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से. तो यू कैन सी इन दिस स्पेयर, अगर मैंने 4 लाइन अपवर्ड बनाई है तो 4 डाउनवर्ड, आधे पार्ट में आधी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी, तो फ्लक्स भी तो आधा हो जाएगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ही तो फ्लक्स होता है. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? फाई ई फ्रॉम द हेमी स्पेयर इज Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी उनकी आधी हो जाएंगी, क्योंकि हाफ पार्ट तो कट हो गया. तो और चार्ज यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्या होगी? Q is 10 microcoulomb, that is 10 into 10 to the power minus 6 in coulomb, divided by 2 into 8.85 into 10 to the power minus 12. On solving this we have
8.85 multiply by 2. This 17.70. After solving this, we can write here, this is power for 12, 12 minus 6, 6, and this one is 7, that is 1 into 10 to the power 7 divided by 17.70. It can be written as 1, इसको यहाँ पे अगर हम रिमूव करें तो 2 0 यहाँ पे लेके 70 into 10 to the power 7, 1 0 is again removed, so we can take here 10, 2 into 10 to the power 5 divided by 177. तो 177 almost 6 times ये होगा, तो approximately it is equals to 6 into 10 to the power 5 with the same unit as the unit of electric flux. So which one should be correct answer? So this should be wrong, this should be wrong, this should be wrong, and C option is correct in this question. So again you can note down solutions of these questions. Now we are moving towards our next question, that is the question number 4. The question number 4 is this. Sorry, question number 5 is here. Question number 5. It is not convenient to use the spherical Gaussian surface to find the electric field due to an electric dipole using the Gauss theorem. Options are A, Gauss's theorem, fails in this case. The option B, if the problem does not. Does not have a spherical symmetry. The option C, Coulomb's law is more. Coulomb's law is more fundamental than Gauss's law. This is the third option, and the fourth option is spherical Gaussian surface will alter the dipole moment. Okay, I repeated the question. It is not convenient to use a spherical Gaussian surface to find the electric field due to an electric dipole using Gauss's theorem, because 4 ऑप्शन दिए हैं कि डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी सरफेस के अंदर डाइपोल रखा गया है तो उस सरफेस से हम फ्लक्स क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते. गॉसेस थ्योरम इफ फेल्स इन दिस केस, थ्योरम फेल हो जाती है. द प्रॉब्लम डज नॉट हैव द स्फेरिकल सिमेट्री, तो इस प्रॉब्लम में स्फेरिकल सिमेट्री नहीं है. या कूलम्ब्स लॉ इन मोर फंडामेंटल देन गाउस लॉ, कूलम्ब्स लॉ ज़्यादा फंडामेंटल है. एंड स्फेरिकल गॉसियन विल अल्टर द डाइपोल मोमेंट. तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस, इट इज द थ्योरेटिकल ऑप्शन. द प्रॉब्लम डज नॉट हैव द स्फेरिकल सिमेट्री. और अगर इसमें कोई और भी ऑप्शन होता तो ये भी पॉसिबल है, बिकॉज द नेट टाइप चार्ज ऑफ द डाइपोल इज 0, दैट्स व्हाई नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद द गॉसियन सरफेस व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड इनसाइड अ सरफेस. सो दिस इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. द क्वेश्चन नंबर 6 इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वेबर. द फर्स्ट यूनिट इज A option, option A Weber,
the option B is Newton per coulomb. Option C is volt into meter. And option D जूल पर कोलम. ओके, ये यूनिट है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेवर होगा, बेवर नहीं होता है, मैं आपको बता दूं ये मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है. न्यूटन पर कोलम, ये भी आपको पता है न्यूटन पर कोलम किसका होता है. न्यूटन पर कोलम फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है. जूल पर कोलम वर्क डिवाइडेड बाई चार्ज होगा, तो ये तो फिर वोल्टेज या पोटेंशियल होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है. दिस शुड बी करेक्ट. ओके, चेक भी कर लेते हैं. फ्लक्स क्या होता है, EDF होता है, इसका यूनिट क्या हुआ न्यूटन. इसका यूनिट अगर हम लिखें न्यूटन पर कोलम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फॉर एरिया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम. इन अदर वर्ड्स E का एक यूनिट और भी होता है, क्योंकि हम ये फॉर्मूला भी जानते हैं, E = -dV/dx where dV is the potential difference, x is the distance. So here unit should be volt per meter. So the phi unit of phi अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो जब हम ये लिखेंगे वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर फॉर ds, 1 meter is cancel here, it should be volt into meter. So the right option is the option C is the right option. Now you can note down these questions by pausing the screen and by playing the video again and again. Okay, now our next question. Question 6, the next question. Sorry, question number 7. If next question, last question was the 6th question. This is the question number 7. The inward and outward electric flux of the closed surface in units of Newton meter square per coulomb are respectively 8 into 10⁻³ ये क्या है आपका इनवर्ड है, और 4 into 10⁻³ ये आउटवर्ड है जो क्वेश्चन में गिवन है. देन द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस, ऑप्शन ए इज 4 into 10⁻³ कोलम, ऑप्शन बी इज -4 into 10⁻³ कोलम, ऑप्शन सी is -4 into 10⁻³ divided by epsilon column, and option D is -4 into 10⁻³ -4 into 10⁻³ epsilon naught column. So these are the four options. ओके, एक कोई भी सरफेस है उसमें इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लक्स गिवन है, तो टोटल फ्लक्स हम क्या निकालेंगे, फाई जो चार्ज होता है वो क्या होता है, फाई टोटल = Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओके, तो यहाँ पर टोटल कितना होगा इनवर्ड और आउटवर्ड. इनवर्ड को हम लेते हैं नेगेटिव 8 into 10⁻³, आउटवर्ड को लेते हैं पॉजिटिव 4 into 10⁻³ गिवन है क्वेश्चन में, = Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इफ द नेट चार्ज इज Q, तो हमें चार्ज कैलकुलेट करना है, तो Q इज = दिस -4 into 10⁻³ into एप्सिलॉन नॉट कूलम. दिस शुड बी द करेक्ट आंसर. देखिए चारों ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग, द सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग, द थर्ड ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग, द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नाउ क्वेश्चन 8.
Gauss law of gravitation is, 4 options are given. इसको मैं रब कर देता हूं. Question 8. Options are Gauss law of gravitation, integration G df equals to m v, integration G df equals to G m, sorry, all are the capital M, and C option is integration G df equals to minus 4G pi m. And option D is all the above. Okay, all the above. तो सिंपल क्वेश्चन है, बट मे बी आप थोड़ा शॉक्ड हो जाएंगे कि ये पहले लॉ मे बी आपने सुना हो या ना सुना हो. आप तो अभी तक गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी समझ रहे थे. गॉस लॉ इन ग्रेविटेशनल फील्ड, क्वेश्चन इज दिस, गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज, इनमें से कोई एक फॉर्म करेक्ट होगी, लेकिन अभी लॉ ही आपको पता लेंगे तो फॉर्म कैसे चेक करेंगे. तो मैं बताया तो सिमिलर है. जैसे गॉस लॉ में हम डिफाइन करते हैं द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस गिव्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट सरफेस. तो द सिमिलर लॉ इन ग्रेविटी, जितने भी फील्ड्स होते हैं, जितने भी वेक्टर फील्ड हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, मैग्नेटिक फील्ड हो एंड सम अदर्स, पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उन सबका फ्लक्स होता है. तो सेम है, जैसे हम वहाँ क्या लिखते थे, E डॉट डी एफ नोटिस करते थे, और इसको Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिनेशन चार्ज पे है. तो सेम अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इसको इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को I से रिप्रेजेंट करें, और जिसमें ये इनक्लोज है उसको F से रिप्रेजेंट करें, तो I डॉट डी एफ, और फील्ड कोई भी है, वेक्टर है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी, और ओरिजिन का रीजन क्या होता है इसका M. एप्सिलॉन नॉट यहाँ नहीं होगा, ठीक है. कितना आएगा वो हम चेक करते हैं. M अपॉन एप्सिलॉन नॉट का तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो कहाँ आएगा वो हम चेक करेंगे. तो उसके लिए हम ये फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड. तो सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट चार्ज एट अ पॉइंट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिंपली द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट मास इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. तो यहाँ देखिए, सपोज करते हैं ये अर्थ है, ये यहाँ पर इसका सेंटर है जहाँ पे इसका टोटल मास m ही वर्क कर रहा है, यहाँ पे कोई मास m है, इनके बीच की डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है कितनी होगी, r ही होगी. इन दोनों के बीच में अगर हम फोर्स निकालते हैं तो ये होगा G m e m अपॉन r e स्क्वायर. ओके, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट मास, अगर m की वैल्यू को हम 1 सपोज कर लें तो I का फॉर्मूला, I के अकॉर्डिंग क्या होता है, F अपॉन m. और सपोज करिए फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को टेस्ट चार्ज लेते हैं, सपोज करिए इस मास को हमने ग्रेविटेशनल फील्ड को टेस्ट करने के लिए रखा है, तो m नॉट सपोज कर लें, तो यहाँ m नॉट हो जाएगा, यहाँ भी m नॉट हो जाएगा. इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये G m e अपॉन r e स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला 9th स्टैंडर्ड पे जो आपने रीड किया है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, दिस इज दिस, G equals to capital G m upon r square, where m is the mass of earth and r is the radius of earth. तो here हमने मास क्या अज्यूम किया है, m ही अज्यूम किया है, रेडियस को r ही, तो मीनिंग तो वही हुआ. तो वी कैन राइट द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो एट द प्लेस ऑफ I वी कैन राइट द G. सो अगर हम यहाँ पे ये यूज करते हैं I डॉट डी एफ, तो इसका सिंपल मीनिंग हुआ इंटीग्रेशन G डॉट डी एफ. ओके, और G डॉट डी एफ को जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, डॉट डी एफ इक्वल्स टू, इसको सॉल्व हो क्या आएगा कितना, तो G आपने देखना है अर्थ सरफेस पे, ये पॉइंट यहाँ हो, क्लोज सरफेस अगर हम इसको सपोज करें कहीं भी हो, तो डिस्टेंस तो आ रही रहेगी, और जब तक, और मास भी फिक्स है, और ये यूनिवर्सल है, तो G में तो कोई वेरिएशन आना नहीं है.
तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये टर्म होगा जी डी एफ, और एंगल की बात भी करेंगे, एंगल कितना होगा। अगर हम यहाँ पे कोई गॉस थ्योरम की तरह एरिया वेक्टर लेते हैं, इस यहाँ पे ये मास है, तो वो तो आउटवर्ड ही होता है डी एफ, लेकिन मास में रिपल्सन तो होता ही नहीं है, अट्रैक्शन ही होता है। तो ये अर्थ क्या करती है, इसको ग्रेविटी की जो आई है उसका डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होगा, तो इनवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होती थी, ये इनवर्ड है। तो यहाँ एरिया वेक्टर और ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच का जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 180, फो कॉस 180 वेयर। तो दिस इज माइनस, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और जी कांस्टेंट है तो जी को आउटसाइड ले लेंगे, माइनस भी आउटसाइड आ जाएगा, ये बचेगा डी एस, और अर्थ का जो एरिया होगा वो क्या होगा माइनस जी, और यहाँ पे देखते हैं कि ये 4 एरिया ऑफ अर्थ इज 4 पाई आर स्क्वायर, आर ई लेंगे तो आर ई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ओनली आर के टर्म में है या नहीं है पता है, और जी की ये वैल्यू शिफ्ट कर दें, माइनस कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज कैंसल, द रिमेनिंग टर्म इज माइनस 4 पाई जी एम। ओके, तो ये ड्राइव भी हो गया एक तरीके से। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, द ग्रेविटी डी एफ, ये एक्चुअल में वेक्टर में ही लिखे हुए हैं ऑप्शन में, प्रोसेस है, इक्वल्स टू माइनस 4 पाई जी एम। दिस शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर ये 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन है तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, और वो क्या हुआ, दिस सी ऑप्शन इज करेक्ट इन द क्वेश्चन। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, नया नहीं है ये, जितने भी फील्ड्स होते हैं उन सब में ये कंडीशन गॉस लॉ अप्लाई हो सकता है। ये आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी यूज किया, स्पेस मूव भी करता है, स्पेस में कर्वेचर भी होता है, जो कि गॉस के एक स्टूडेंट रीमेन के नेम पे रीमेन कर्व बोला जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने इसकी स्टडी की है, मैक्सवेल ने भी की है, फैराडे कॉन्सेप्ट भी यूज हुए हैं। तो सिंपल आपको ये समझना होगा कि जहाँ भी फील्ड है उसका फ्लक्स जरूर होगा। फील्ड कॉन्सेप्ट जो है वो सेंट्रल कोर ऑफ द कॉन्सेप्ट है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, यू कैन नोट डाउन दिस इफ यू वांट। जैसे हमने गॉस थ्योरम ड्राइव की थी ऐसे ही हम इसको भी ड्राइव कर सकते हैं, और एक मास लिया है, इनक्लोज करके और भी कई सारे मास ले सकते हैं, सुपरपोजिशन लॉ अप्लाई कर सकते हैं, हर तरीके से वेरिफिकेशन में यही आएगा। तो आगे से आप इसको ध्यान रखेंगे कि दिस इज द गॉस लॉ फॉर द ग्रेविटेशनल फील्ड। नाउ we are moving towards our next question, that is the last question of day. Now I read the last question, 10th question, this is not the last question, 9th question. Charge motion within the Gaussian surface gives the changing physical quantities. 4 options in the question, so you can note down this. Question number 9. Question 9. Charge motion within the Gaussian surface gives the changing a physical quantity. A is electric field, B is electric flux, C, the third option is charge, and D is Gaussian surface area. क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अगर कोई चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है, जैसे इसको ले लेते हैं, यहाँ ये चार्ज है, अगर ये मूव करता है तो इसमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इफेक्टेड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इफेक्टेड नहीं होगा, हमें पता है, क्योंकि चार्ज अंदर ही रहेगा, अगर अंदर ही मूव कर रहा है विद इन द गॉसियन सरफेस। ओके, चार्ज मोशन से इंडिपेंडेंट होता है, हमें पहले से पता है, तो ये भी रॉन्ग आंसर हुआ। और गॉसियन सरफेस एरिया, तो चार्ज के मूव करने से ये एरिया कैसे चेंज होगा, नॉट पॉसिबल। तो एक ही ऑप्शन बचा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस क्वांटिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। रीजन क्या है,
चार्ज की वैल्यू वही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, लेकिन अगर ये इधर से इधर मूव कर रहा है तो डायरेक्शन बदलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर मूव कर रहा है तो इसके मोशन पे डायरेक्शन चेंज होगा, मीन्स ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी चेंज बाय द मोशन ऑफ चार्ज, वो भी सिर्फ डायरेक्शन. नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 10 and the last question of the day. A charge Q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is doubled, then the outward electric flux will be, the first option is doubled, the second option B increases 4 times, and option C V half, and option D if remains same. So this is the most common question of Gauss theorem. जब आप पढ़ते हैं तो भी आपको बताया जाता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द गॉसियन सरफेस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एरिया ऑफ दैट सरफेस. तो ना तो ये डबल होगा, ना ये 4 टाइम होकर इंक्रीज होगा, ना हाफ होगा, इट रिमेन सेम. दिस शुड बी द करेक्ट ऑप्शन द डे. सो now we have finished the session. So now we will meet in our next class. Till then, goodbye.